Okay, good morning. So today we will discuss the relative motion of two projectiles, relative motion between two projectiles, and we will also discuss that what is the condition for the collision of two projectiles. Okay. So first of all, we will try to find the relative motion between the two projectiles. So consider there is a motion of one projectile like this, with velocity is u1 and angle is suppose alpha, and for another projectile projected suppose at an angle of beta, so this angle is beta and its initial velocity of projection is u2, the velocity of projection है that is u2, इसका velocity of projection है u1. Okay, now is u1 x will be u1 cos alpha and u1 y will be u1 sin alpha, right? And in case of second particle, u2x will be u2 cos alpha and u2y will be u2 sin alpha. Okay? Now, what we have to do, we have to find the relative velocity of particle 1 with respect to particle 2 along x-axis and then along y-axis. So, if we write like this, u1 2x, that is relative velocity of 1 with respect to 2. Okay, so we know how to express this. It will be u1x minus u2x. So u1x will be u1 cos alpha minus u2 cos alpha, right? So this is the relative velocity along x-axis, right? Now, what will be the relative velocity along y-axis? How can we find the relative velocity along y-axis? The simple formula is again, relative velocity along y-axis can be written as like this one. u1 to y will be equal to u1y minus u2y, right? So, what is u1y? It is u1 sin alpha. Okay, sorry, here it will be beta, sorry, here it will be beta, here it will be beta. Okay, u1 sin alpha minus u2 sin beta. Okay, so this will be the relative velocity of particle 1 with 2, but it's along x-axis, and this will be along y-axis. So this is a relative velocity of 1 with respect to 2 along y-axis. Okay. Now, if we take the ratio, so it will be u1 to x divided by u1 to y. So it will be u1 cos alpha minus u2 cos alpha divided by u1 sin alpha minus u2 sin beta, u2 sin beta. Okay. Now you can check this ratio will be constant. Okay, you can find this ratio will be constant. This is constant because the initial velocity of projection u1 and initial velocity of projection u2 are constant for a given projectile, and angle of projection is also constant for a given projectile. So this is constant. So u1 to y is equal to u1 to y can be written as
1 by constant. So 1 by constant will be how much? 1 by constant is the reciprocal of this into u1 to x, and you know y is equals to mx. Is the formula is coming in the form of y is equals to mx, that is a straight line. So the motion will be a straight line. Okay, sometimes it is asked. So this is a straight line. So when two projectiles are projected with some angle and some velocity, and if you will see the motion of one projectile from the motion of another projectile, it will be a straight line. मतलब एक projectile के motion को दूसरे projectile से अगर observe करेंगे तो straight line दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक equation of straight line आ रहा है. ये बहुत important चीज़ है, आपको याद रखना है, ठीक है. और यहाँ पे जो 1 by constant आ रहा है, यही हमारा slope हो जाएगा. Slope is tan theta. So tan theta is how much? Tan theta will be this one. Reciprocal of this one, u1 sin alpha, or you can write it u1 to y by u1 to x. This will be the slope of the graph. So this is one of the important part to be discussed, which is the relative motion between two projectiles. Okay, clear? Next step. Next क्या है? Now what is will be the condition for collision? अब collision जब होगा दो particles के बीच में, तो उसका conditions जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो conditions कैसे निकालेंगे और उससे basis पर हम problems फिर कैसे solve करेंगे. तो एक चीज़ जो हम लोग को याद रखना है कि collision जब होगा और collision होने पे जो condition होगा collision का वो होगा कि condition जो है वो आप याद रखिए, condition of collision of two projectiles. Collision of two projectiles. ठीक है, दो projectiles है और दोनों projectiles के collision कैसे होगा? Condition of collision of two projectiles. तो दो projectile का collision हम लोग करेंगे, तो collision का collision हो रहा है तो उसका condition क्या है, इसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को दिमाग में रखना है. कॉन्सेप्ट ये है, द डायरेक्शन ऑफ relative velocity, direction of relative velocity, direction of relative velocity should be along the line joining the two particles. Should be along the line joining the two particles, right? Joining the two particles. तो दोनों particles को जो जोड़ रहा है लाइन, उस लाइन के अलॉन्ग उसका रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए. अगर उस लाइन के अलॉन्ग उसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेगा, अदरवाइज वो कोलाइड नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है. जैसे सपोज कर लीजिए कि एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, एक हमारा एग्जाम्पल 1 मान लीजिए है कि यहाँ पर एक हाइट है और यहाँ पर एक हाइट है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज x. ओके, दिस इज हाइट h1 एंड सपोज दिस इज हाइट h2, ठीक है. अब यहाँ पर से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ऐसे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, और यहाँ पर से भी एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, यहाँ पर से भी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ठीक है. अब ये फेंका गया u1 से सपोज, ओके, और कुछ एंगल होगा, सपोज एंगल इज अल्फा, और सपोज दिस इज u2 एंड द एंगल इज बीटा, राइट. अब ये हम लोग को खोजना है कि कंडीशन क्या होगा कोलिजन का. कंडीशन क्या होगा कोलिजन का? देखिए, यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका गया, सपोज दिस इज ए, और दूसरे पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया, दैट इज बी. तो ए और बी को जोड़ने वाला लाइन ये है, ओके, ए और बी को जोड़ने वाला लाइन ये है, सपोज दिस एंगल इज थीटा.
ए और बी को जोड़ने वाला लाइन ये है, दिस एंगल इज। सो अब देखिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन इस ए बी लाइन के अलोंग होना चाहिए। अगर होगा तभी वो कोलिजन पॉसिबल है, या अगर कोलिजन हो रहा है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ए बी के अलोंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का निकालिएगा तो फिर वही u1, अगर इसका हम एंगल निकालते हैं थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि जो स्लोप निकलता है, जो स्लोप यहाँ निकला था, जैसे हम यहाँ निकलेंगे u1, इसका निकालेंगे u1 साइन अल्फा मान लीजिए एंगल माइनस u2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा x कंपोनेंट, और इसका जो वेलोसिटी होगा इधर होगा इसका x कंपोनेंट। तो दोनों का x कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है तो प्लस हो जाएगा u1 cos अल्फा प्लस u2 cos अल्फा cos बीटा। सो दिस इज द स्लोप। स्ट्रेट हम बोले थे कि दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव वेलोसिटी जब होगा तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब मोशन ऑफ एक प्रोजेक्टाइल का हम दूसरे से ऑब्जर्व करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्लोप निकला था, दिस इज द स्लोप, और स्लोप का मान लेते हैं tan phi ले लेते हैं tan phi। सो ये हो गया स्लोप। और स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है जो कि स्ट्रेट लाइन एक एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब ये मतलब अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर फाई एंगल बना रहा है, राइट। बट यहाँ पे आप चीज देखिए कि ऑलरेडी यहाँ एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा दिस वन, tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा h2 माइनस h1, तो ये हो जाएगा h2 माइनस h1 बाई x, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ए बी के अलोंग होना चाहिए। इसका मतलब जो स्लोप है वो ए बी के अलोंग होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला चीज इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि कंडीशन फॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा कंडीशन होगा कोलिजन का वो हो जाएगा दिस वन डिवाइडेड बाय u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा इज इक्वल टू h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय x। ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब थीटा और फाई सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan फाई जो है वो हम लोग को बता रहा था स्लोप। इसका स्लोप जब हम एक पार्टिकल के मोशन को, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को दूसरे से ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा, और उस स्ट्रेट लाइन के लिए उसका स्लोप आएगा दिस वन, ये आएगा उसका स्लोप, ओके। और जब हम लोग यहाँ से फिगर से tan थीटा निकाल रहे हैं तो इस लाइन का स्लोप आ रहा है इतना, या tan थीटा आ रहा है इतना। और हम लोग जानते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए कोलिजन के लिए कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उसका डायरेक्शन उस लाइन के अलोंग होना चाहिए जो दोनों पॉइंट को जोड़ रहा है। तो अगर इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का जो स्ट्रेट लाइन आएगा उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, इसका मतलब tan थीटा और tan फाई इक्वल होना चाहिए, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। नाउ एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि सपोज एक पार्टिकल है, उसको ऐसे फेंका गया, दूसरा पार्टिकल है उसको ऐसे फेंका गया, ठीक है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल पता नहीं है, अल्फा दिया हुआ है। दिस इज 100 मीटर अपार्ट, 100 मीटर अपार्ट है, और दिस इज 60 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारा कंडीशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा निकालना है, फाइंड करना है क्या क्या, फाइंड करना है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा हम लोग को फाइंड आउट करना है पहला। सो देखो अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है टाइम व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस, टाइम व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस, ओके, टाइम व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस।
And third question is the distance of P from A where collision occurs, जहां कोलिजन हो रहा है, इस पॉइंट का ए से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं, राइट। देखिए इंटरेस्टिंग है, इसके लिए सॉल्यूशन देखते रहिए। पहले एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालना है, तो जैसे ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ओके। तो अब हम लोग को निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो कैसे निकलेगा, देखिए जब हमारा पार्टिकल ए से प्रोजेक्टेड किया गया और बी से भी पार्टिकल प्रोजेक्टेड किया गया, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी और इसका रिलेटिव, मतलब इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में या बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, वो अलोंग द लाइन ए बी होना चाहिए। फिर से द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, तभी कोलिजन होगा। कोलिजन कंडीशन क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी उस लाइन के अलोंग होना चाहिए जो दो पार्टिकल को जोड़ रहा है, तो ए बी के अलोंग होना चाहिए, ओके। तो ए बी का, तो इसका दो वेलोसिटी निकाल लीजिए पहले। इसका पहला पार्टिकल का या ए से जो पार्टिकल यू ए एक्स कितना आएगा, यू ए एक्स हो जाएगा 60 cos 30 डिग्री, सो इट इज √3/2 30√3 इतना आ गया यू ए एक्स। और यू ए वाई कितना आ जाएगा, इसका वाई कॉम्पोनेंट 60 sin 30, सो इट विल बी 30, राइट। एंड यू बी एक्स कितना हो जाएगा, यू बी एक्स इसका एक्स अब इसका हो जाएगा माइनस, इस साइड जा रहा है, ठीक है। आप माइनस साइन लेके चल सकते हैं, और फिर क्योंकि जब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों ऑपोजिट जा रहा है, इसका वेलोसिटी इधर है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका वेलोसिटी इधर है, दोनों ऑपोजिट जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी यू बी एक्स इज इक्वल टू माइनस इट इज 50 cos अल्फा एंड यू बी वाई हो जाएगा 50 sin अल्फा, ओके। अब हम लोग को अल्फा निकालना है, फर्स्ट प्रॉब्लम वही है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका रिलेटिव वेलोसिटी किधर होना चाहिए, जैसे इसका टोटल रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, अगर मान लीजिए यू ए बी निकालते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यू ए एक्स दैट इज 30√3 प्लस 50 cos अल्फा। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये आई मतलब एक्स एक्सिस के अलावा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं इसको, तो प्लस 30 माइनस वाई वाला दोनों कॉम्पोनेंट ऊपर ही है, तो सेम डायरेक्शन होने से रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाता है जी, यही ना आएगा रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्रेस करें, सो एक्स कॉम्पोनेंट इतना आएगा और वाई कॉम्पोनेंट इतना आएगा। अब हमारा कंडीशन क्या है कि अगर कोलिजन हो रहा है देन द रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग ए बी, तो इसका मतलब सिर्फ इसका x कंपोनेंट रहना चाहिए, y कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो होगा ये शुड बी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग ए बी होना चाहिए। इस कंडीशन, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको 0 कर देते हैं, तो हमारा sin अल्फा कितना आ जाएगा, sin अल्फा आ जाएगा हमारा 3/5, राइट। यहाँ से अल्फा हम निकाल लेंगे, tan sin इनवर्स 3/5। क्लियर, ये पहला पार्ट का समझ में आ गया, ओके। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, टाइम व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस, समय कितना लगेगा कोलिजन होने में, ओके। तो समय लगने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डिस्टेंस तो पता है 100 मीटर, और इसके अलावा रिलेटिव वेलोसिटी भी पता है, तो टाइम ही निकाल देंगे। तो टाइम विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर का डिस्टेंस है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो कंप्लीटली ए बी के अलोंग आया, तभी कोलिजन पॉसिबल है। तो हमारे पास जब रिलेटिव वेलोसिटी है वेक्टर, उसमें सिर्फ x वाला कंपोनेंट बचा हुआ है, y वाला तो 0 हो गया है, बस ये हमारा वेलोसिटी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30√3 प्लस 50 cos अल्फा, तो cos अल्फा आपका 4/5 आ जाएगा, 10 40 हो जाएगा, है ना। सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 30√3 प्लस 40, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा, आंसर विल बी अराउंड जो भी 1.09 के अराउंड शायद कुछ आएगा, ठीक है।
कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि टाइम निकालना, तो टाइम निकालना, डिस्टेंस 100 मीटर है और रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है ए बी के अलोंग आया और उसमें y कंपोनेंट 0 है तभी कोलिजन होगा। तो x कंपोनेंट है, x के अलोंग वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम निकल जाएगा, राइट। टाइम लगभग 1.09 के अराउंड आएगा, 1.09 सेकंड्स के अराउंड कुछ आएगा। एंड थर्ड पार्ट कि जहां पर कोलिजन हो रहा है, सपोज कर लीजिए कोलिजन यहां पे हो रहा है, तो उस कोलिजन जहां पे हो रहा है वहां का डिस्टेंस निकालना है a से। तो ये हमको जब a से उसका डिस्टेंस निकालना है तो उतना टाइम में उसका x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल लेते हैं। तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, uax t और uax t हो जाएगा, है ना, और एक्सेलरेशन तो 0 है, x इज इक्वल टू सिर्फ uax t आएगा। और y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y में डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा uayt माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, अब uax सबको पता है, uax सबको पता है, uay पता है, uay पता है, टाइम भी निकाल लिए, कोलिजन टाइम कितना समय में कोलिजन हो रहा है, g भी आपको पता है, पुट कर लीजिए तो x और y निकल जाएगा। एक बार आपको x और y का वैल्यू मिल गया तो आप आराम से AP पॉइंट निकाल लीजिएगा, बिकॉज AP पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ गए। कैलकुलेशंस यू कैन परफॉर्म एट योर होम बट कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट, समझ में आ गया। एक और फाइनल क्वेश्चन बताते हैं, सो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। एक और फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए कोलिजन का। बस आपको याद रखना है कोलिजन होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या कि जो डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो अलोंग द लाइन होना चाहिए जो उसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसे एक और प्रॉब्लम है, एक पार्टिकल है यहाँ से ऐसे फेंका गया, वैसे आके गिरेगा, और एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, वैसे आके गिर रहा है। ओके, और यहाँ पर ये लोग मिल रहा है, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, यहाँ पे लोग आके मिल रहा है। ठीक है, कोलाइड कर रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज दिस इज हाइट h, ये हाइट h दिया हुआ है। ठीक है, और ये फेंका गया था 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, और ये फेंका गया था 10 मीटर पर सेकंड से, एंड दिस एंगल इज थीटा। सो सबसे पहले हम लोग को थीटा निकालना है और ये हाइट निकालना है, हाइट निकालना है और थीटा निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हाइट और थीटा। सपोज यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं O। ठीक है, ये ले लीजिए। अब कोलाइड कर रहा है तो इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा उसका डायरेक्शन y एक्सिस पे आना चाहिए, तभी कोलाइड होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, कोलिजन होने के लिए द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। ओके, चलिए, तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा के बारे में सोचते हैं कि थीटा कैसे निकलेगा। ओके, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, uax 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, एंड uay इसका कोई y में कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब uox क्या हो जाएगा, uox हो जाएगा 10 cos थीटा, एंड uoy क्या हो जाएगा 10 sin थीटा। ओके, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर UAO निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5i बचेगा, क्योंकि सॉरी 5 माइनस 10 cos थीटा हो जाएगा i। ओके, ये आ गया हमारा x कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का, और इसका भी डायरेक्शन x का इधर है, इसका भी x का डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम में जा रहा है तो माइनस ही होगा, और प्लस इसका y कंपोनेंट तो 0 है और 0 है, इसका तो बचेगा सिर्फ 0 माइनस 10 sin थीटा। ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। आई कैप जे कैप लिख देंगे बिकॉज अलोंग y एक्सिस का बात हो रहा है। ठीक है, अब हमको ये कोलाइड कर रहा है तो कोलाइड करने के लिए डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर किधर होना चाहिए, अलोंग वर्टिकल एक्सिस या अलोंग y एक्सिस, मतलब ये x वाला कंपोनेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। कितना सिंपल है, बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स होना चाहिए फॉर कोलिजन। और हाइट निकालना था, तो एक चीज देखिए, इस यहाँ पर अगर ये कोलाइड कर रहा है, यहाँ पर दोनों यहीं मीट कर रहा है, यहीं पे कोलाइड कर रहा है ना,
कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ अगर कोलाइड कर रहा है मतलब इसको यहाँ आने में इतना टाइम लगा होगा, इसको यहाँ से यहाँ आने में उतना टाइम लगा होगा, और ये जो टाइम है दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द दिस पार्टिकल, जो सेकंड पार्टिकल है इसका यही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सेकंड पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए, 2 is equal to t is equal to 2u sin theta by g, तो it will be 2 into 10 sin 60 degree is root 3 by 2 divided by g is 10, so it is root 3 seconds, right? तो root 3 सेकंड टाइम लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ आने में, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा। एंड what is the velocity of this along, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है दोनों का y एक्सिस पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, इतना आ रहा है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज -10 sin थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है y एक्सिस में -10 sin थीटा, जैसे अभी बनाए थे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा a b डिस्टेंस था 100 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग पता था, तो 100 मीटर को रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस से डिवाइड किया तो टाइम निकला। यहाँ पे हमको टाइम पता है कि इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ मतलब पूरा ये हाइट को कवर करने में टाइम कितना लगा, दैट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द सेकंड पार्टिकल, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ आने में इतना समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ आने में उतना ही समय लगा होगा, और इसका वर्टिकल नीचे आने में इतना समय लगा होगा, इसको यहाँ से यहाँ आने में उतना ही समय लगा होगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ का समय इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस पार्टिकल, उतना ही टाइम ये नीचे आया होगा। तो टाइम वी नो, डिस्टेंस वी आर अननोन, सो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आल्सो वी आर नोन, सो कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस, तो इसीलिए बता माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि ये पार्टिकल नीचे आ रहा था ये ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, इसका 0 था और ये ऊपर जा रहा था, राइट, तो वहाँ इसका 0 था, इसका ये ऊपर जा रहा था तो माइनस आया था, सो माइनस इज ओनली फॉर द डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 10 sin थीटा, थीटा इज 60 डिग्री इनटू √3, टाइम में √3 आया तो √3/2 10 इनटू √3/2 इनटू √3, सो इट विल बी 3 and 5 that is 15 meter, right? Main is the concept you have understood कि हमको निकालना था ये हाइट, तो हमको क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चाहिए और टाइम चाहिए। तो टाइम कितना लगा, जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतना ही इसका नीचे आने का टाइम होगा। टाइम वी नो द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, y it is coming 0 if what is y it is coming -10, see relative velocity is coming -10 sin theta, why, because relative velocity किसका निकाल रहे हैं हम, a का निकाल रहे हैं o का रेस्पेक्ट, a का निकाल रहे हैं o का रेस्पेक्ट में, o से हम a को देखेंगे, o तो a तो नीचे नहीं आता लिखेंगे, बट o तो एक्चुअली में उसका तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं y एक्सिस में, राइट, सो यू कैन डायरेक्टली आल्सो राइट 10 sin theta, नो प्रॉब्लम, क्लियर, ओके। So these are the questions which you solve once, see it once, it will be done.